Hello dear students, welcome to the lecture number 9 of chapter logarithms. In last lecture, we have studied about logarithms and anti-logarithms. We have solved some examples related to the laws and related to the calculation part of common logarithm. Using the log table, how we can multiply two things or how we can divide that things, we have studied in last lecture. Now some examples related to log and anti-log are there. Number 1, if log of 3 to the base 10 is equal to 0.4771212, without using log table, we have to find these things. Now look at this. Log of 3 to the base 10 is given 0.4771212. It means the logarithm of 3 to the base 10 यानी common logarithm दिया हुआ है. इसमें से हम पहली टर्म फाइंड करेंगे log of 9. First one is log of 9 to the base 10. It can be written as log of 3 square to the base 10. अब log of 3 square to the base 10 means it is 2 into log of 3 to the base 10 using the law of index. Log of 3 square to the base 10 can be written as 2 into log 3 to the base 10 and its value is given, that is 2 into, it is 0.4771212. Now multiply it. It is nothing but 2 into 2, 4, 2, 4, 2, 2 sevens are 14, carry 1, 2 sevens are 14 and 1 15, carry 1, it is 9.0, means 0.9542424 is your answer for log of 9 to the base 10. Now second term, we have to find log of root 3 to the base 10. Second one is log of root 3 to the base 10, which can be written as log of 3 raised to 1 by 2 to the base 10, and using law of index it is 1 by 2 into log of 3 to the base 10. Now it is 1 by 2 into log of 3 to the base 10 is 0.4771212. Now divide it. It is nothing but 0.2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 11, 2 5s are 10, 12, 2 6s are 0s are 6 are. Means we can say that 0.2385606 is your answer. Then third one, it is nothing but log of 1 by 9, log of 1 by 9 to the base 10. Now we know that 9 can be written as 9 raised to 1 by 9 can be written as 9 raised to minus 1. Means we can write it as directly minus log of 9 to the base 10. Because we know that log of 1 by a जो होता है, log of 1 by a is always equal to minus log a. Log of 1 by a is nothing but minus log a. तो इसलिए ये होगा minus log of 9 to the base 10 and log of 9 to the base 10 की वैल्यू हमने निकाली है. Therefore its answer is minus 0.9542424. This is your final answer. This is minus 0.9542424. Now after that fourth one and last one, log of 0.3, log of 0.3 to the base 10. अब इसको दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं हम. log of 0.3 यानी ये देखिए, ये 3 का log, 3 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, 3 की कैरेक्टरिस्टिक होती है 0, तो इसलिए ये आया 0.477112. यानी जब हम log देख रहे हैं इस log टेबल में, तो क्या करना पड़ेगा हमें, 30 का 0 में देखना है, तो ये वाला आएगा. तो यहां पे भी वही करना पड़ेगा, सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी. यानी इसका आंसर आप लिख सकते हो बार 1.4771212. या इसको हम अलग तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो ये जो 0.3 है, इट कैन बी रिटन एज, यहां पे लिखता हूं मैं कि log of 0.3, log of 0.3 to the base 10, it can be written as log of 3 upon 10 to the base 10. It means we can write it as log of 3 to the base 10 minus log of 10 to the base 10.
अब log of 3 to the base 10 is 0.4771212 and minus log 10 to the base 10 is 1 point. We can write it as 0.00000. अब इनकी सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं हम, यानी इसकी सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करने का है -1 पॉइंट, तो कैसे आएगा? यहां पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आता है -1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको माइनस साइन देंगे तो भी चलेगा. इट इज नथिंग बट -0.52288788, यानी 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके माइनस साइन भी दे सकते हो. तो आपका आंसर ये भी आ सकता है, लेकिन उससे इजी ये होगा माइनस और बार 1.4771212. समझ में आ रहा है आपको? तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए. आगे देखिए, इफ log of 33.48 is equal to 1.5247854, find log of cube root of 33.48. पहले वैल्यू लिखेंगे हम log of cube root of 33.48. It can be written as log of 33.48 raised to 1 by 3, which can be written as 1 by 3 into log of 33.48. So that is nothing but 1 by 3 into, ये log of क्या है? 1.524784. डिवाइड करिए इसको 3 से, ये 0.35 are, then 0, 3 8s are, then 2, then 3 6s are, then 3 1s are, and 3 8s are. Means it is 0.5082618 is your answer. Second इसमें का log of 3.34800. देखिए अब ये क्या होगा? log of 33.48 यानी 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 33.48 यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 है और इसका मैंटिसा पार्ट है ये 0.0524. ठीक है, तो वही आएगा यहां पे. सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी? 0 आएगी, और आगे का पार्ट वही आएगा 5247854. क्योंकि हम इसका लॉग जब देखते हैं तो भी 33 का 4 बिट में ही देखने वाले, इसका जब लॉग देखोगे तभी आप 33 का 4 और 8 में ही देखने वाले हो. तो दोनों का आंसर सेम होगा. यानी नंबर 3 आपको निकालना है एंटी लॉग ऑफ 4.524784. दैट इज नथिंग बट, अब देखिए एंटी लॉग देखना है, यानी हमें 0.52 का 47 में देखना है इसका. तो अगर इसका लॉग इतना आता है तो हम कहेंगे कि इसका एंटी लॉग डेफिनेटली 3348 आएगा. तो यहां पे हम 3348 लिखेंगे. अब मुझे बताइए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक 4 है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 4 है, तो हम क्या करते हैं? यहां पे पॉइंट देके इंटू 10⁴ लिखते हैं. ऐसा लिखे तो भी चलेगा, और में अगर लिखते हो तो ये 33480 और इसके बाद पॉइंट, यानी इतना आंसर होगा, क्योंकि ये नंबर है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? 4 हो सकती है. तो आप ऐसे लिखे तो भी चलेगा आंसर, या 33,480 ऐसा लिखे तो भी चलेगा. एंड नंबर 4 नहीं, इतना ही थे इसमें. ठीक है, 3 ही फाइंड करने थे, तो एंटीलॉग ऑफ 4 पॉइंट जो है ये इतना आएगा. तो इसको नोट कर लीजिए. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 3, इंस्ट्रक्शन इज सिंप्लीफाई बार 3 प्लस 5472 माइनस बार 2.8371 प्लस 1.4581. तो इसमें क्या करेंगे हम? ये सभी नंबर लॉग देख के आए हुए नंबर है, इनकी यानी दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इज अ मैंटिसा पार्ट. तो पहले हम जो एडिशन वाली टर्म है इसकी और इसकी एडिशन कर लेते हैं. सिंप्लीफाई करते समय एडिशन करते हैं तो 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 8 15,
कैरी आया 1, ये 6 प्लस 4 10, कैरी फिर से आया 1, ये आएगा 5 प्लस 5 10, कैरी फिर से आएगा 1, ये होगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस बार 3 यानी ये आएगा बार 1 माइनस बार 2.8371. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. वी हैव टेकन एडिशन ऑफ दीज टू. नाउ विल टेक द सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन करते हैं. 3 में से 1 गया तो रहेगा 2. 15 में से 7 गए, 15 में से 7 गए तो रहेंगे 8, कैरी आएगा 1, यहां पे 4 होगा. 10 में से 4 गए, 10 में से 4 जाते हैं तो यहां पे रहेगा 6. 10 में से 4 गए, फिर यहां पे कैरी आ गया 1, यहां 10 में से 9 गए तो आएगा 1 पॉइंट, फिर आया कैरी 1, यानी यहां पे कैरी 1 आया तो क्या होगा, ये बार 2 यानी -2 प्लस 1 यानी बार 1, और बार 1 माइनस बार 1, तो आपका आंसर आएगा 0.1682. 0.1682. उसके बाद इसको करते हैं, सेम उसी टाइप का एग्जांपल है. पहले इसको और इसको ऐड करेंगे. देखिए 9 प्लस 7 16, क्या आएगा 1, यहां पे होगा 10, 10 प्लस 8 18, फिर से क्या आएगा 1, 9 प्लस 4 13, क्या आएगा 1, 9 प्लस 2 11, क्या आएगा 1, 1 कैरी आने के बाद ये बार 2 प्लस 1 बार 1, बार 1 और ये 1, ये होगा 0. बार 1 प्लस 1 0. 0.1386 माइनस बार 1.0891. अब सब्ट्रैक्शन करेंगे. 6 में से 1 गए तो रहेगा 5, 18 में से 9 गए तो रहेगा 9, क्या रहेगा 1, ये होगा 9. 13 में से 9 गए तो रहेगा 4, क्या आया 1, 1 माइनस 1 होगा 0.0 माइनस -1 यानी ये आएगा 1.0495. ठीक है, एक बार ये आपको अगर नहीं जमता है तो एडिशन करो, एक के नीचे एक रख के, और फिर सब्ट्रैक्शन करो. ऐसे किया तो भी चलेगा. आपको ये कैलकुलेशन करते आना जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन. फाइंड x if log of x to the base 10 is equal to bar 5.2385 माइनस बार 2.8051. तो क्या आएगा, देखिए इट इज नथिंग बट इक्वल टू log of x to the base 10 is equal to, सब्ट्रैक्शन करनी है इसकी. 5 में से गए 1 तो रहेगा 4, 8 में से गए 3 तो रहेगा 5, 3 में से गया 0 तो 3, 12 में से गए 8 तो रहेगा 4, कैरी आएगा 1, 1 प्लस 2 3 होगा यहां पर. ये बार 5 माइनस 3 यानी बार 8 रहेगा यहां पर. तो x इज इक्वल टू आएगा एंटीलॉग ऑफ बार 8.4354. यानी अब ये एंटीलॉग देखना पड़ेगा हमें 43 का 0.43 का 54 में. तो देखेंगे हम एंटीलॉग एरिथम्स में. देखिए एंटीलॉग एरिथम 0.43 का 5 में देखना है. 0.43 का 5 में आता है 2723 और 4 में मीन डिफरेंस है 3, तो ये आएगा 2726 इज इक्वल टू आएगा 2726, यानी ये आएगा आंसर 2.726 इंटू 10⁻⁻8. बार 8 ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 2 पॉइंट. हम कभी भी एक पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट देंगे और फिर लिखेंगे इंटू 10⁻⁻8 क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक -8 है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 4 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3 इंटू बार 1.3345. तो हम पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5 आर 15, कैरी आया 1, 3 4 आर 12 प्लस 1 13, कैरी आया 1, 3 3 आर 9 प्लस 1 10, कैरी आया 1,
3 3 जार 9 प्लस 1 कैरी फिर से आया 1 और 3 1 जार -3 और कैरी आया +1 तो ये आएगा बार 2। बार 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बार 3 और +1 का कैरी इसलिए बार 2। तो ये log ऑफ x, ये 4 इंटू लॉग एक्स टू द बेस 10 है तो log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू आएगा 1/4 इंटू बार 2.0035। तो अब देखिए ये हो गया नेगेटिव नंबर, ये आगे है पॉजिटिव नंबर और उसको डिवाइड करना है तो ऐसे इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बार 2 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। तो हम इस बार 2 को थोड़ा रीराइट करेंगे, इसको लिखेंगे बार 4 प्लस 2.0035। मैंने लास्ट लेक्चर में ये सिखाया हुआ है आपको कि कैसे करना है। अब डिवाइड करो तो क्या आएगा, देखिए बार 4 डिवाइडेड बाय 4 आएगा बार 1 पॉइंट 4 से डिवाइड करो इसको तो 5 0 0 और 8, ठीक है, आगे आएगा 7 5। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि log ऑफ x टू द बेस 10 इज नथिंग बट इक्वल टू बार 1.5009। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज नथिंग बट एंटी लॉग ऑफ बार 1.5009। एंटी लॉग निकालना है, 0.50 का 0 और 9 में देखना है। 0.50 का 0 और 9 में देखेंगे। 0.50 का 0 में 3162 और 9 में मीन रेफरेंस है 7 तो ये आएगा 3169। इट इज नथिंग बट इक्वल टू 3169। कैरेक्टरिस्टिक बार 1 है तो डेसिमल पॉइंट एकदम इनिशियली देंगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक भी जीरो नहीं रहेगा, इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक बार 1 रहेगी। तो x की वैल्यू आपकी आएगी 0.3169। चलो फटाफट नोट करो ये दोनों क्वेश्चंस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नाउ लुक एट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if x is equal to 4th root of 72.14 raised to 5 into root 45 अपॉन 2.8 होल क्यूब इंटू रूट ऑफ 32। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं जो लॉगरिथम के साथ हम कर सकते हैं ओनली। तो इसमें लॉग को यूज करते समय हमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देयरफॉर लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, मैं इसको लिखते समय ऐसे लिखूंगा लॉग ऑफ ये जो टर्म है ये 72.14 रेज़ टू 5 इंटू ये 45 को हम रूट 45 एज इट इज लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2.8 होल क्यूब इंटू रूट ऑफ 32 और इसका पावर आएगा 1/4। ठीक है, ये 4th रूट यानी इसका पावर 1/4 है। तो ये लॉ ऑफ इंडेक्स यूज होते समय ये इधर जाएगा तो यहां पे इज इक्वल टू आएगा 1/4 इंटू, अब जब इस पे लॉग अप्लाई करेंगे, इस पे लॉग जब अप्लाई करेंगे हम तो कैसे आएगा, देखिए लॉग ऑफ न्यूमरेटर अप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा लॉग ऑफ ये 72.14 इंटू 45 रेज़ टू 1/2 और माइनस ये लॉग ऑफ रहेगा 2.8 होल क्यूब इंटू 32 का रेज़ टू भी आएगा 1/2, 32 का रेज़ टू 1/2 स्क्वायर रूट यानी रेज़ टू 1/2। ठीक है, अब इस पे और लॉग अप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा 1/4 इंटू ब्रैकेट पहले आएगा इसको रेज़ टू 5 है, इसको अप्लाई करेंगे तो ये log of this one raised to 5 means it is 5 into log of 72.14 and plus 1/2 into log of 45 ब्रैकेट क्लोज माइनस दूसरा आएगा 3 into log of 2.8
और प्लस 1/2 इंटू लॉग ऑफ 32, ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज। चलो लॉज ऑफ लॉगरिथम पहले अप्लाई करना इस पे आना चाहिए। ये लॉज जिसको आते हैं इसको ये करने आता है। जैसे ये स्टेप है और ये स्टेप है, ये दो स्टेप कैसे कैसे आए वो देखिए। तो ठीक है, लॉ कैसे, लॉ ऑफ इंडेक्स, लॉ ऑफ प्रोडक्ट एंड लॉ ऑफ डिवीजन, ये तीनों लॉ ऑफ क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, तीनों लॉज यहां पे अप्लाई किए हुए हैं। अब हम इनके लॉगरिथम देखेंगे। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 इंटू, नीचे लिखता हूं यहां पर, इज इक्वल टू 1/4 इंटू ब्रैकेट। अब देखिए 5 इंटू, इसका लॉग देखना है। अब इसका लॉग देखना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले 72.14 के लिए 72 की कैरेक्टरिस्टिक आती है 1 पॉइंट, 72 का 1 और 4 में देखना है, लॉगरिथम देखना है 72 का 1 और 4 में। 72 का 1 में 8579 और 4 में मीन डिफरेंस है 2, तो ये आएगा 8581, 8581 प्लस 1/2 इंटू ब्रैकेट 45 की कैरेक्टरिस्टिक आएगी 1 पॉइंट, 45 का 0 में देखेंगे, 45 का 0 में है 6532, 6532 ब्रैकेट क्लोज, दिस ब्रैकेट क्लोज, माइनस ब्रैकेट में 3 इंटू ब्रैकेट 2.8 की कैरेक्टरिस्टिक आएगी 0.28 का 0 में देखना है, 28 का 0 में आएगा 4472, 4472 माइनस 1/2 इंटू ब्रैकेट 32 की कैरेक्टरिस्टिक 1.32 का 0 में देखेंगे 5051, ये ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रहा है सबको? और ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज। अब देखिए, अब पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे ये प्लस है, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, 1/4 इंटू ब्रैकेट, चलो पहले इसको 5 से डिवाइड करो, 5 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 1 जार 5, 5 8 जार 40, कैरी आया 4, 5 5 जार 25 प्लस 4 29, कैरी आया 2, 5 8 जार 40 प्लस 2 42, कैरी आया 4, और 5 1 जार 5 प्लस 4 9, यहां पे आएगा 9.2905 प्लस, अब इसको 2 से डिवाइड करो, यह आएगा 0.28 जार 16, 2 2 जार 4, 2 6 जार 2 6 जार, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ब्रैकेट में इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, कैरी 2, 3 4 जार 12 प्लस 2 14, कैरी 1, 3 4 जार 12 प्लस 1 13, कैरी 1 पॉइंट, 3 0 जार 0, और 0 प्लस 1 ये आएगा 1। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस 0.27 जार 14, 2 5 जार 10, 2 2 जार और 2 5 जार, ब्रैकेट क्लोज। आगे आने वाला 5 आप इग्नोर भी कर सकते हो। अब ये दोनों की एडिशन लेंगे पहले, 1/4 इंटू ब्रैकेट, इन दोनों की एडिशन ले लो, क्या आएगा, 6 प्लस 5 11, क्या रहेगा 1, 7 प्लस 0 7, 2 प्लस 9 11, क्या रहेगा 1, 9 प्लस 2 11, क्या रहेगा 1, 1 प्लस 9 10, माइनस, अब इन दोनों की एडिशन कीजिए,
क्या आएगा देखिए, 6 + 5 11, कैरी आया 1, 3 + 1 4, 5 + 4 9, 7 + 3 10, कैरी आया 1, 1 + 1 2। अब इनकी सब्ट्रैक्शन कीजिए, 1/4 इंटू ब्रैकेट, 1 में से 1 गया तो 0, 7 में से 4 गए 3, 11 में से 9 गए 2, कैरी आया 1, 1 में से 1 गया 0, और 10 में से 2 गए 8, 8.0230। अब 4 से डिवाइड करो, ये आएगा 2.0, फिर आएगा 0, 4 5 30 हो गया, 4 8 4 7 28, फिर 2 बचा 25। तो इसको 8 भी लिख सकते हो तुम। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, लॉग ऑफ x की वैल्यू हो गई। लॉग x इज इक्वल टू 2.0058। तो x इज इक्वल टू आएगा एंटी लॉग ऑफ 2.0058। तो क्या करना पड़ेगा, अब हमें 0.00 का 5 और 8 में देखना है। 0.00 का 5 और 8 में, 5 में है 1012 और 8 में है 2 1014, तो इज इक्वल टू आएगा 1014। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक है, तो पॉइंट यहां पे देंगे तो x की वैल्यू आएगी 101.4। समझ में आया सबको? तो चलो इसको लिखो फटाफट। Now look at for question number 6. If A is equal to 37.58, B is equal to 25.56 and C is equal to 42.29, find the value of P if P is equal to square root of A cube upon C raised to 5 into B square. P की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। गिवन क्या है, गिवन दैट P is equal to square root of A cube upon C raised to 5 into B square. लॉग अप्लाई करेंगे हम इस पर, तो देयरफॉर लॉग ऑफ P इज इक्वल टू, ये होगा लॉग ऑफ, अब स्क्वायर रूट ऑफ A क्यूब यानी A का पावर होता है 3/2, क्या रहेगा A रेज टू 3/2 अपॉन C रेज टू 5 इंटू B स्क्वायर। अब लॉग इस पे अप्लाई करेंगे, तो लॉग ऑफ P इज इक्वल टू आएगा 3/2 इंटू लॉग A माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉग ऑफ C रेज टू 5 मीन्स 5 इंटू लॉग C और प्लस 2 इंटू लॉग B, ब्रैकेट क्लोज। तो A, C और B के वैल्यूज हम यहां पर रखेंगे। तो लॉग ऑफ P इज इक्वल टू क्या आएगा, लॉग ऑफ P इज इक्वल टू 3/2 इंटू लॉग ऑफ A की वैल्यू क्या है देखिए 37.58 माइनस 5 इंटू लॉग ऑफ C यानी लॉग ऑफ 42.29 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ एक B की वैल्यू है 25.56 ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हमें लॉगरिथम का यूज लेना पड़ेगा, लॉग देखना पड़ेगा पहले। तो लॉग ऑफ P इज इक्वल टू क्या आता है देखिए, लॉग ऑफ P इज इक्वल टू 3/2 इंटू ब्रैकेट 37.58 की कैरेक्टरिस्टिक है 1 पॉइंट, 37 का 58 में देखिए 37 का 5 में है 5740 और 8 में मीन डिफरेंस है 9, तो 5749 ब्रैकेट क्लोज।
माइनस ब्रैकेट में 5 इंटू, अब log ऑफ 42.29, तो यहां पे 1 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक इसकी 42 की कैरेक्टरिस्टिक 1, क्योंकि पॉइंट के पहले 2 डिजिट्स है। 1 पॉइंट 42 का देखेंगे 2 और 9 में, 42 का 2 में 6253 और 9 में है 9, 53 प्लस 9 62, यानी 6262 आएगा ये 1.6262 और प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 1 पॉइंट, इसके लिए 25 का 5 और 6 में देखना पड़ेगा। 25 की कैरेक्टरिस्टिक भी 1 ही होती है। 25 का 5 में है 4065 और 6 में मीन डिफरेंस है 10, तो ये आएगा 4075 ब्रैकेट क्लोज। चलो अब इसको पहले 3 से आप कैसे भी कर सकते हो, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो आप पहले 2 से डिवाइड करके फिर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, दोनों भी चलता है। हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 3 इंटू ब्रैकेट क्या रहेगा देखिए 0.27 8 7 और we can write it as 4 5, ठीक है। फिर माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, कैरी आया 1, 5 6 30 प्लस 1 31 कैरी 3, 5 2 10 प्लस 3 13 कैरी 1, 5 6 30 प्लस 1 31 कैरी 3, 5 1 5 प्लस 3 8 प्लस, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 10 कैरी आया 1, 2 7 14, 14 प्लस 1 41 कैरी आया 4, 14 प्लस 1 15 कैरी आया 1, 2 4 8 एंड 2 2 ये आता है 2.8150। अब ये दोनों के एडिशन करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 कैरी आया 1, 3 4 12 प्लस 1 13 कैरी आया 1, 3 7 21 प्लस 1 22 कैरी आया 2, 3 8 24 प्लस 2 26 कैरी आया 2, 21 प्लस 2 23, ठीक है। तो 2.36235 माइनस, अब इनके एडिशन करेंगे। अब देखिए 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 3 4, 8 प्लस 1 9 एंड 8 प्लस 2 10, यानी ये आया 2.36235 माइनस 10.9460। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये 5 में से 0 गए तो 5, 3 में से 0 गए तो 3, 12 में से 6 गए तो 6 कैरी आया 1, 6 में से 5 गए तो 1, 13 में से 9 गए, 13 में से 9 गए तो कितना आएगा, 13 में से 9 गए तो आएगा 4, कैरी आया 1, तो ये 10 प्लस 1 11 हो गए और 2 माइनस 11 यानी बार 9 आएगा, ये बार 9.41635। तो ये हो गई लॉग ऑफ पी की वैल्यू अपनी, लॉग पी की वैल्यू हो गई बार 9.4164 लिखेंगे हम इसको। तो P इज इक्वल टू आएगा एंटी लॉग ऑफ बार 9.4164। तो आपको जो एंटी लॉग देखना है तो 0.41 का 6 और 4 में देखना है, 0.41 का 6 और 4 में देखना है, एंटी लॉग देखना है 0.41 का, 0.41 का 6 में
2606 और 4 में मीन डिफरेंस है 2, तो 2608 यह आएगा 2608। इसकी कैरेक्टरिस्टिक बार 9 है तो यहां पे पॉइंट लिखेंगे हम इंटू 10⁻⁻9 लिखेंगे, इंटू 10⁻⁻9। तो ये आ गई आपकी P की वैल्यू, P इज इक्वल टू 2.608 इंटू 10⁻⁻9। आंसर हम एक बार चेक कर लेते हैं। 2.608 इंटू 10⁻⁻9 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है आपको? चलो इसको लिखो फटाफट, जल्दी से लिखो। Now look at this question number 7. Given pi is equal to 3.142, r is equal to 2.307 and h is equal to 8.5. Find the value of v where v is given pi r square h. So given that v is equal to pi r square h, taking log on both sides, we have log of v is equal to log of pi r square h. Therefore log of v is equal to log of pi plus 2 into log of r plus log of h. That is equal to log of pi means it is 3.142 plus 2 into log of value of r is 2.307 and plus log of h is log of 8.5. That is nothing but equal to, अब log देखेंगे 3.142 का तो हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी पड़ेगी। इट इज 0.31 का 4 और 2 में देखना है लॉगरिथम। 31 का 4 और 2 में, तो 31 का 4 में है 4969 और 2 में है 3, तो ये आएगा 4972 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट। इसके कैरेक्टरिस्टिक फिर से 0.23 का 0 और 7 में, 23 का 0 में है 3617 और 7 में मीन डिफरेंस है 13, 17 प्लस 13 30 यानी 3630 प्लस 0 पॉइंट। इसके लिए देखना पड़ेगा आपको 85 का 0 में, तो 85 का 0 में क्या है 9294। अब देखिए दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 0.4972 प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, 2 zeros are 0, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 3s are 6 plus 1 7.0 plus 0.9294। That is nothing but equal to, अब एडिशन करेंगे 4 plus 0 plus 2 6, 9 plus 6 15 plus 7 22, carry 2, 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 9 15, carry 1, 10 plus 7 17, 17 plus 4 21, yeah 2.1526 ये log v की वैल्यू। therefore v is equal to anti-log of 2.1526। तो 0.15 का 2 और 6 में देखो, 0.15 का 2 और 6 में देखना है। 0.15 का 2 में है 1419 और 6 में मीन डिफरेंस है 2, तो 19 प्लस 2 21 1421, दैट इज इक्वल टू 1421। तो v इज इक्वल टू आएगा 142.1, या क्योंकि यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक है, 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट रखेंगे, तो ये आएगा 142.1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कंप्लीट हुआ। आज के लेक्चर में हम यहीं पर इसको खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स और उसमें हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे के पेजेस
दैट इज नेचुरल साइंस, कोसाइंस, नेचुरल टैंजेंट्स, लॉगरिथमिक साइंस, वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। चलो फटाफट, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।